हाउ डू यू लुक एट कश्मीर 5 years from now? 370-35 से हटा है, उसके बाद क्या कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है? जैसा सरकार कहती है जी इतना फ़र्क पड़ा है, उतना नहीं पड़ा, कम पड़ा है, चीज़ें बेहतर हैं और ख़राब हो गई. हाउ डू यू सी दैट? I'm so glad you asked me about the future, because most of the times I get asked about the past, but I will briefly address it. कि security situation Kashmir region में improve हुई है, Jammu region में we have challenges, right? So this is the short answer to the long story. But where do we see Kashmir in 5 years from now? That's an excellent question. So Kashmir, let me sort of beat around the bush a little bit. Kashmir has a very small land holding size. So our primary sector, which is agriculture, it has its own limitation. The land holding size is very fragmented. Second thing, the secondary sector, industries, etc. Most of the 60% of the industrial land that is earmarked, it is unusable because it's marshy or rocky or something. That leaves us with the tertiary sector. Now in the tertiary sector, if I say the service sector, mostly आपके दिमाग में आएगा tourism. But we need to move beyond tourism because I think there is too much tourism now. The tourism is so much कि अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम आपको 6 घंटे जो है आप रास्ते में, जो कि मतलब 1-2 घंटे का रास्ता है, वो आपको 6 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में. टूरिज्म इतना ज़्यादा है. वी डोंट इवन हैव द कैपेसिटी टू आपने देखा कि ऋषिकेश में या ऐसी जगहों में, उत्तराखंड में, जो रैम्पेंट डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू टूरिज्म, रिवर बैंक्स पे एयरबीएनबीज बनाना, होटल बनाना, उसकी वजह से फिर इंसानी जान का कितना नुकसान हुआ. तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टूरिज्म इन द सर्विस सेक्टर, तीनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं कश्मीर के रिलेटेड. मैं एक अलग चीज़ कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ सर्विस सेक्टर में ही हमें एक इनोवेटिव मेथड निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें कश्मीर की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन वी कैन कॉल इट, क्योंकि जो पिछले 3 दशक हैं, पिछले 3 डेकेड्स में पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हुआ है. देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ सो मेनी बिजनेस डेज. आई थिंक द अदर डे प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच सेड कि 8 years of equivalent of business days have been lost in the last 3 decades. So we 8 years wiped out. He said कि 3000 दिन जो है पिछले 30 साल में बन रहा है. और अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ ईयर्स देखें तो 8 साल सीधे के सीधे हमारी लाइफ से, 3 साल तो मेरी कॉलेज लाइफ से चले गए हैं, तो वो तो मुझे ऐसे ही पता है. तो ओवरऑल बिजनेस का बहुत लॉस हुआ है. उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं. आज अगर आपको सोचना हो कि आप कश्मीर में कोई बेकरी खोलें, कुछ खोलें, आप सोचेंगे, क्योंकि पहले कभी भी डिस्टर्बेंस हो सकता था. आज चलिए वो सिचुएशन नहीं है. हाउएवर, माई इकोनॉमिक विजन फॉर कश्मीर एंड माई विजन फॉर द इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कश्मीर is based on high-tech skills. And that is something that the Prime Minister of India just emphasized when he was in the US. He met the tech CEOs. I think the high-tech sector is something we need to take more seriously. Like for example, artificial intelligence, generative AI, cloud security solutions. These are the futuristic skills. So we need to equip Kashmiri youth with futuristic skills. This is my economic vision and it's something that I'm working on. I'm working on equipping youth with AI and generative AI skills and tech skills, social media skills. इसका काफ़ी broad ambit है. हर किसी के बस का नहीं होता AI, cloud security, network security. कोई social media पे काम कर सकता है, कोई AI पे काम कर सकता है. Generative AI has definitely. But there are a lot of Kashmiri students, very bright, who are studying from the best institutions, and those people could be students could be, they could help out with this because they certainly got a lot of talent and they are studying also. Yeah, we've got actually very good resources. We've got a very positive mindset के यूथ हैं हमारे पास जिनके साथ हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो कश्मीर में जैसे कि कई सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, टेररिज्म हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, चाहे जो कोई भी प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन है कि आपको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट देना है लोगों को. अब मैंने इतना घुमा फिरा के आंसर क्यों दिया, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हम जिन चीज़ों पे रिलाई करते हैं, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्री, वी विल हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, क्योंकि उनका ना अपना, मुझे लगता है सबका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है. टूरिज्म का तो मुझे लगता है बियॉन्ड सैचुरेशन चला गया. टूरिज्म का मोर देन सैचुरेशन हो गया. देयर इज नो स्पेस एनीवेयर. सो वी नीड टू इक्विप कश्मीरी यूथ विद tech skills.
which they can work from anywhere. आजकल आप देखें, आजकल फाइवर है या अमेजॉन मैकेनिकल टर्क है, AMT, जिस पे कहीं से भी मतलब कोई भी अमेरिकन क्लाइंट, स्वीडिश क्लाइंट, टर्किश क्लाइंट, वो जो है किसी को भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गिग वर्क का कॉन्सेप्ट हो गया है. आजकल ये नहीं है कि आपको बैंगलोर जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के गूगल में हायर होके. वो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत लिमिटेड है. फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं. फ्रीलांसर्स हैं, लोग जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं. सो दिस इज माय इकोनॉमिक विजन, क्योंकि इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है. इसके लिए सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये सब चीज़ें चाहिए. अब देखिए, पहले जब सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब थी तब नेटवर्क डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता था. लेकिन अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ मच बेटर, सो वी डोंट हैव दोज नेटवर्क डिसरप्शंस. वी हैव यूथ हु आर वर्किंग विद अस. they are already on projects. They are, from their laptops, they are working from home. They don't need to relocate anywhere. And this is how, by doing this, they are developing themselves. उनकी personal development हो रही है. At the same time, they are also contributing to the GDP of the country, because when you export services, you are actually bringing in GDP for the country. So you're building yourself and you're building the nation. Absolutely. दूसरा सवाल मेरा है शैला जी कि हम लोग बात करते हैं यूथ की. सो एक पार्ट ऑफ यूथ तो लॉस्ट हुआ है कश्मीर में 89 ऑनवर्ड्स, और ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस है. सिर्फ कश्मीर का लॉस नहीं, पूरे भारत का लॉस है. मैसिव लॉस. आपको लगता है कि यूथ वापस मेन स्ट्रीम की ओर आ रहे हैं? तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे फिर भी कन्विंस हो रहे हैं कि वी नीड टू जॉइन द मेन स्ट्रीम, और उसमें कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट हो रही है? आपको ऐसा लगता है? अगर मेन स्ट्रीम से आपका मतलब है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ना लोगों का मन भर गया है बहुत हद तक. लेकिन अगर मेन स्ट्रीम से आपका मतलब है इकोनॉमिक, yes, definitely there is a hunger for productive engagement, there is a hunger for exposure, there is a hunger for right guidance, and this is what the government needs to focus on, and we need to give it one generation. देखिए, हमारी तो पूरी की पूरी जनरेशन, हम पे जो असर पड़ा, तो ये जो हमारी जो जनरेशन थी, the ones who were born in the 90s or brought up in the 90s, हमारा तो पूरा समझ लीजिए आप लाइफ में बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ. आई एम अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ दैट, what happened in my life. But now I also got a chance to turn my life around, and a lot of youth are getting their life back, because now we can actually work. We can actually, for the first time, I've said this in another podcast before this, कि पहली बार हमने देखा कि अमन शांति कैसी होती है, दिखती कैसी है. Okay. ये तो पता ही नहीं था ना पहले कि what is, मतलब पहले ये होता था लाइक मेरी खाला वो जो है वो गुजर गई. अब तो वो एक बार शी सर्वाइव्ड अ बॉम्ब ब्लास्ट वंस, मतलब व्हेन हर आर्म वाज नियरली सेवर्ड. माय कज़न, शी वाज गोइंग टू कॉलेज, कुछ टेयर गैस शेल उनको लग गया, उनको यहाँ पे इंजरी आ गई. ठीक है, देयर इज एवरी फैमिली इन कश्मीर which has suffered. Some story they have of suffering. Some story, यानी कि आप जा रहे हैं घर से जॉब के लिए, आप जा रहे हैं घर से कोचिंग करने के लिए, and anything can happen. मतलब आपको पता नहीं था कि आपका बेटा अगर अभी निकल रहा है दिन में, तो शाम को वो घर सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा. But for the first time we are seeing what it means. मतलब we as in my generation, पहली बार हम लोग देख रहे हैं what it means to go out of the home and not wonder whether you'll come back or not. Yes, whether you'll come back in one piece anyway.